السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی گفتگو۔ مساق جمہوریت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اوپن بیلٹ کی تجویز پر اتفاق کیا تھا، لیکن اب اپوزیشن سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی تجویز سے بھاگ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی رہنماؤں کے اجلاس میں اپوزیشن پر کڑی تنقید۔ کہا، گزشتہ حکومتوں کی پشت پناہی سے مافیا سرکاری زمینوں پر قابض ہوا، فوراً سے حقیقی فنڈنگ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے لی۔ پی ڈی ایم تحریک کا اگلا کارڈ کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف اور آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 4 فروری کو ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ کو سیاسی دھچکا، وفاقی حکومت نے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں 1200 ملازمین کی بھرتیوں اور مستقل کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وفاقی حکومت کی آئینی درخواست میں 2011 اور 2012 کے دوران کی گئی بھرتیوں کو خلاف قانون قرار دینے کی استدعا۔ پشاور اور مظفرآباد میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام، ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی کارروائی۔ آپریشن کے دوران 50 کلو بارود، 13 توپ گولے اور 17 مارٹر گولے برآمد۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 6 سالہ بچی سے زیادتی کیس میں ملزم زین العابدین کو سزائے موت سنا دی۔ مجرم نے 2015 میں 6 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ عدالت کا ملزم کو متاثرہ خاندان کو 5 لاکھ روپے دینے کا حکم۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کینٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے ستمبر میں انتخابات کرانے کی تجویز سے آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا، صوبوں نے بروقت اقدامات نہ کیے تو پرانے قوانین پر انتخابات کرا دیں گے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے اہم سنگ میل عبور، کورونا ویکسین سائنو فارم کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ نور خان ایئر بیس پر تقریب میں ویکسین پاکستان کے حوالے۔ چینی سفیر نے کہا، ویکسین کی فراہمی پاک چین لازوال دوستی کی مثال ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم اور عوام کی طرف سے چین کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں کورونا کی وار جاری، ملک بھر میں ایک روز میں وائرس سے مزید 26 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا کے 1615 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا کیسز 5,46,428 تک جا پہنچے۔ ملک میں تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال، پہلی سے 8ویں تک کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ یونیورسٹیز بھی کھل گئیں۔ حکومت نے تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا۔ کورونا کی دوسری لہر میں شدت آنے پر 26 نومبر 2020 کو تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا۔ سندھ میں ڈاکو راج سے عوام کو دبایا جا رہا ہے، قانون کی بالادستی پر کرپٹ ٹولہ پریشان ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا شکارپور میں تقریب سے خطاب، فواد چودھری بولے، جتنا نقصان نواز شریف نے پنجاب کو پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ کل بڑے لوگوں کے خواب چکناچور ہوئے۔ سندھ میں بہترین امن و امان قائم ہے، اسد عمر پنجاب پر توجہ دیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا وفاقی وزیر اسد عمر کو جواب۔ تحریک انصاف کے 25 ارکان قومی اسمبلی رابطے میں ہیں، پی رہنما فیصل کریم کنڈی کا بڑا دعویٰ۔ ملک میں 2 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5ویں بار اضافہ، عوام نے ظلم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اپوزیشن رہنما بھی پھٹ پڑے، قمر زمان طاہرہ بولے، ثابت ہو گیا نااہل حکومت کے پاس کوئی عوامی ایجنڈا نہیں۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 4 فروری سے پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس۔ قومی ہیڈ کوچ مصباح الحق کہتے ہیں، جنوبی افریقہ بہترین ٹیم ہے، فائٹ بیک کر سکتی ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ کراچی سمیت ملک بھر میں پرائمری، سیکنڈری اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں آج سے کھل گئیں۔ تعلیمی اداروں کے داخلی دروازے پر جراثیم کش اسپرے واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں۔ پورے ملک میں تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو کورونا وائرس کی SOPs پر عمل درآمد کا پابند کیا گیا ہے۔ ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں آج سے تعلیمی سلسلہ مکمل بحال ہو گیا ہے۔ پہلی سے 8ویں جماعت ہائر ایجوکیشن اور جامعات میں بھی آج سے پڑھائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسکولوں کے دروازوں پر بچوں کا تھرمل گن سے درجہ حرارت چیک، ماسک اور کلاسوں میں جانے سے پہلے بچوں کے ہاتھ سینیٹائز کرائے گئے۔ تعلیمی ادارے تقریباً سال بھر کورونا کیسوں میں اضافے اور کمی کے ساتھ کلی یا جزوی طور پر بند رہے۔ اسکول آنے والے بچوں کا کہنا تھا کہ آن لائن سے زیادہ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا
अच्छा लगता है। हम अपने दोस्तों और टीचर्स को याद करते रहे। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में निस्फ तलबा की हाजिरी के साथ तालीमी सरगर्मियों का आगाज। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया था कि मुल्क भर में तमाम प्राइमरी स्कूल्स और जामियात खोल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है। वाज़ेह है कि 9वीं ता 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला 18 जनवरी से शुरू हो गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसे पहले कोरोना वैक्सीन देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन बतौर तोहफा भिजवाई है, लेकिन हमें कोरोना वैक्सीन मज़ीद दरकार है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन बतौर तोहफा भिजवाई है, लेकिन हमें कोरोना वैक्सीन मजीद दरकार है। फरवरी के आखिर तक कोरोना की 11 लाख डोजेज दरकार होंगी। उम्मीद है कि वैक्सीन की मजीद खेप जल्द पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दें। कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए रजिस्ट्रेशन का आसान तरीक़ाकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वज़ारत सेहत को वैक्सीन के लिए दयानतदाराना सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में लाइन तोड़ने की आदत है। हमें पहले उन लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए जो आसानी से वायरस का शिकार हो सकते हैं। इनमें बीमार लोग और बुजुर्ग शामिल हैं, जबकि जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो VIP हो या कोई और, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इसे वैक्सीन देनी चाहिए। इस मेयार से आगे बढ़ने पर आसानी होगी और हम पर उंगलियां भी कम उठेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। इजलास में हुकूमती रहनुमाओं को सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा है कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा मसला है। इससे वाज़ेह हो चुका है कि कब्ज़ा माफिया अपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मिसाक जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओपन बैलेट की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया था, लेकिन अब अपोजिशन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ से भाग रही है, क्योंकि वो सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। आज शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट खुद अपोजिशन जमातें बन रही हैं। इजलास में हुकूमती रहनुमाओं को सरकारी जमीनों पर कब्जों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा मसला है। इससे वाज़ेह हो चुका है कि कब्जा माफिया अपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों की पुश्तपनाही से माफिया सरकारी जमीनों पर काबिज हुआ। ये लोग सरकारी जमीनों में से कमा के पैसे से सियासत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपने डोनर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया है और तहरीक इंसाफ ने किसी हुकूमत या NGO से पैसे नहीं लिए, जबकि अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियत ने फंडिंग की। हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान लेते रहे, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। इलेक्शन कमीशन में वो बेनकाब होंगे। महंगाई के बारे में इमरान खान ने हुकूमती इक़दाम के नताइज मिलना शुरू हो चुके हैं। शदीद महंगाई की लहर पर काबू पा लिया और अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। आज अफरात ज़र इस सतह से कम है जिस सतह पर हमने हुकूमत संभाली थी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कम से कम बोझ अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला पहला सूबा बन चुका है। सूबे के हर शहरी को मुफ्त सेहत सहूलियात देना हमारी हुकूमत का बड़ा कारनामा है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि SSWMA के कानून में तब्दीली का ड्राफ्ट तैयार किया है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि SSWMA का हर डिविजनल हेडक्वार्टर लेवल पर बोर्ड बनाया जाएगा। हर बोर्ड अपने इलाके में काम करने के लिए खुद मुख्तार होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नए ड्राफ्ट के हिसाब से बोर्ड का चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि मुतालिका मेयर चेयरमैन भी बोर्ड में होंगे, जबकि प्राइवेट मेंबर्स भी बोर्ड में लिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जारी। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आ गया है। मुल्क भर में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,683 हो गई है।
एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1615 केसेस सामने आए। मजीद 26 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि इस बीमारी से 1278 मरीज शिफायाब हो गए। मुल्क भर में वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,683 हो गई, जबकि कुल मरीजों की तादाद 5,46,428 हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34,785 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 89,66,981 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों में, करंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना की कुल 33,493 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 2,092 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 5,01,252 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 2,47,249 हो चुकी है, जबकि कुल अमवात की तादाद 3,996 हो गई है। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे पर वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लाई गई हैं। वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएंगी। पाक फिजाए का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। खुसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। मामले खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कोरोना वैक्सीन वसूल की। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने ट्वीट में कहा है कि साइनोफार्म वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन के लिए अनथक मेहनत करने वाले हर शख्स का शुक्रगुजार हूँ। कोरोना का मुकाबला करने में एनसीओसी और सूबों ने अहम किरदार अदा किया। वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। दूसरी जानिब एनसीओसी ने मुल्क भर में वैक्सीन की तरसील के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। NIH इस्लामाबाद में वैक्सीन रखने के लिए तमाम इकदाम कर लिए गए। सूबाई और जिलाई सतह पर वैक्सीन कोऑर्डिनेशन मराकज भी कायम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को अवामी नुमाइंदों की नाअहली के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि अवामी नुमाइंदों की नाअहली के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें यकजा की जाएं। अदालत ने कहा कि 9 मार्च को तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मुकर्रर की जाएं। अवामी नुमाइंदों की नाअहली के लिए दायर तमाम दरख्वास्तों पर एक ही बार फैसला होगा। एक ही बार ये मामला निपटा देना चाहते हैं ताकि साइलिन को सुन सकें। अदालत का कहना था कि अदालतों को सियासी मामलात में इस्तेमाल करने से अदालत का नुकसान होता है। जब किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल करें तो नुकसान हल्के के अवाम का होता है। जस्टिस खोसा ने पार्लियामेंट को ये भी कहा था कि 62(1)(f) में तरमीम करें। अगर ये ऐसे ही रहा तो हम सब इस कानून के तहत नाअहल हो सकते हैं। अदालत का कहना था कि हमने फैसला दिया तो इस बार नाअहली की तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा करके एक ही बार सब पर फैसला देते हैं ताकि हम असल साइलिन को सुने। सिंध में गाड़ियों के लिए नए नंबर प्लेट्स के इजरा का सिस्टम 11 साल बाद भी दुरुस्त ना हो सका। मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत महकमा एक्साइज सिंध में रजिस्टर्ड होने वाली किसी भी कमर्शियल या प्राइवेट गाड़ी को साल 2016 से नंबर प्लेट का इजरा नहीं हो सका। महकमा एक्साइज सिंध में कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों के लिए नई नंबर प्लेट्स के इजरा का सिस्टम 11 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद दुरुस्त ना हो सका, जो नंबर प्लेटों के मुबैना तौर पर नाकिस ट्रेंडिंग के निजाम के बाइस सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत महकमा एक्साइज सिंध में रजिस्टर्ड होने वाली किसी भी कमर्शियल या प्राइवेट गाड़ी को साल 2016 से नंबर प्लेट का इजरा ना हो सका। ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से महकमा एक्साइज को भेजे गए मकतूब में कहा गया है कि महकमे में अब तक रजिस्टर्ड कराई जाने वाली 1,34,000 से जायद गाड़ियों को नंबर प्लेट जारी ना हो सकी। महकमे की जानिब से व्हीकल रजिस्ट्रेशन कागजात पर नंबर प्लेट की मद में 1,000 रुपए फीस वसूल करने के बावजूद नंबर प्लेट जारी नहीं की जाती है, बल्कि नंबर प्लेट के अदम इजरा की मोहर सबत करके रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया जाता है, जिसे गाड़ी का मालिक अस खुद आरजी नंबर प्लेट पर चिस्पा करके अपनी गाड़ी पर आवेजा कर देता है। नजर डालते हैं कारोबारी खबरों पर BTV बिजनेस में। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट।
وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 116 روپے 7 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے ایک بار پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جبکہ قیمتوں کا اطلاق 1 فروری رات 12 بجے سے 15 فروری تک ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 116 روپے 7 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 111 روپے 90 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 89 روپے 23 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت 80 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں اضافہ ہوا، جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں بھی 83 ارب روپے اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس کی کم ترین سطح 45,686 اور بلند ترین سطح 46,698 رہی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس پر 517 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس 46,385 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس کی کم ترین سطح پر 45,686 اور بلند ترین سطح 46,698 رہی، جبکہ ایک ہفتے میں 135 ارب روپے کے 3 ارب 36 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے پر ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 83 ارب روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ کر 8,358 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے ڈالر کی قیمت میں بھی کمی دیکھی گئی۔ ہفتے وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 65 پیسے سستا ہوا۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ ایران نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات میں ثالثی اور تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ صدر بائیڈن نے منصب سنبھالنے کے بعد طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق جواد ظریف نے تہران میں طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ ملا غنی برادرز کی قیادت میں آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ایران کی جانب سے قطر میں امریکہ کے ساتھ شروع ہونے والے امن مذاکرات میں تعطل آنے کے بعد افغانستان میں قیام عمل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں بسنے والے تمام نسل گروہوں اور مکاتب فکر پر مشتمل حکومت سازی کی بھرپور حمایت کریں گے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق جواد ظفیر نے ملا غنی برادر سے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری تنازعات کے لیے امریکہ اچھا ثالث نہیں ہے۔ واضح ہے کہ صدر جو بائیڈن نے منصب سنبھالنے کے بعد طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے، اور اس سے قبل امریکہ میں جاری انتخابات کی وجہ سے افغان امن مذاکرات میں بھی تعطل آ گیا تھا۔ اس صورتحال میں ایران کی جانب سے طالبان کو تعاون کی پیشکش کرنا ایک غیر روایتی اقدام ہے۔ اگرچہ اس سے قبل واشنگٹن کی جانب سے ایران پر طالبان کی خفیہ مدد کا الزام عائد کیا جاتا رہا، تاہم دونوں کے تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں اور عام طور پر انہیں حریف ہی تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے آغاز کے موقع پر ایران نے اس حوالے سے محتاط رویہ اختیار کیا تھا۔ افغان حکومت کے ساتھ طالبان کے مذاکرات کا آغاز رواں ماہ میں ہوا تھا، مگر سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی قبل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ رائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق نیٹو کے بعد اہلکار مئی 2021 تک افغانستان ہی میں رہیں گے، کیونکہ امریکا کے مغربی اتحادیوں کا موقف ہے کہ ابھی افغانستان سے مکمل انخلا کے لیے حالات موزوں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کسان مظاہرین تو درکنار، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی زرعی پالیسی کی خود ساختہ تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اپنی متنازع پالیسی کا ہر ممکن دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وزیر اعظم مودی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ مظاہرین نے بھارتی پرچم کی بے حرمتی کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریڈیو پر نشر ہونے والے آڈیو پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دارالحکومت میں داخل ہونے اور مظاہرین کے لال قلعہ پر دھاوا بولنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم مودی نے واقعے کے 4 دن بعد اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ مظاہرین نے بھارتی پرچم کی بے حرمتی کی ہے، جس سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنے روایتی جارحانہ اور آمرانہ انداز خطابت میں کسان مظاہرین کو سخت کارروائی کے لیے تیار رہنے کا
कहते हुए कहा कि परचम और मुल्क की बेहुरमती और बेइज्जती करने वालों को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने किसान मुजाहिरीन तो दुरकिनार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी यकसर नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर अपनी ज़राई पॉलिसी की खुद साख्ता तारीफों के पुल बांध दिए और अपनी मुतनाज़ पॉलिसी का हर मुमकिन दिफा करने की नाकाम कोशिश की। वाज़ेह है कि मोदी सरकार की किसान दुश्मन ज़राई पॉलिसी के खिलाफ हजारों किसान दारुल हुकूमत की सरहदों पर 3 माह से एहतजाजन बैठे थे। ताहम सुनवाई न होने पर वो यौम जमहूरिया के दिन नई दिल्ली में दाखिल हो गए और उन्होंने लाल किला पर अपने झंडे लहरा दिए थे। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मेजबान और अदाकारा सनम जंग की दिलकश तस्वीर वायरल हो गई। सनम जंग की तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है और कमेंट्स में इनकी तारीफें भी की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा सनम जंग ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सनम जंग की तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है और इनकी कमेंट्स बॉक्स में भी इनकी तारीफें भी की जा रही हैं। इससे कबल याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर अदाकारा सनम जंग की शादी के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। ताहम सनम जंग ने तलाक के हवाले से चुप तोड़ दी थी और हकीकत क्या है सबको बता दिया था। कुछ वक्त तो अदाकारा इस बेबुनियाद खबरों पर खामोश रही, लेकिन अब अदाकारा सनम ने बताया कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। सनम जंग की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर की तवील कैप्शन में अदाकारा ने बताया कि इन दोनों के दरमियान तलाक नहीं हुई है। मारूफ अदाकारा सनम जंग ने सोशल मीडिया पर अपने शौहर से अलहदगी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अज़दिवाजी जिंदगी खुशगवार तरीके से जारी है और इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि झूठी और मन घड़त खबरें उड़ाने वालों को होश से काम लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के बारे में अक्सर गलत बेबुनियाद खबरें गर्दिश करती रहती हैं और इस बार सनम की शादी खत्म होने की बेबुनियाद खबरों पर अदाकारा ने ऐसी खबरों को मन घड़त करार देते हुए सख्ती से तरदीद की है। सनम जंग ने मजीद कहा, कासिम और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं और हम अगले हफ्ते 6ठी सालगिरह मनाएंगे। अपने वीडियोस और नित नए अंदाज में खबरों में रहने वाली हरीम शाह ने कहा है कि टिकटॉक पर मशहूर होने के ख्वाहिशमंद अपना एक मुनफरिद अंदाज रखें। एक इंटरव्यू में हरीम शाह ने कहा है कि अपनी एक दोस्त के कहने पर टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल शुरू किया। आज इसी ऐप की वजह से इन्हें टीवी पर अदाकारी के मौके भी मिल रहे हैं, जबकि अनकरीब वो एक वेब सीरीज में भी नजर आएंगी। हरीम शाह ने कहा कि वो लोग जो टिकटॉक पर मशहूर होना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि अपना एक मुनफरिद अंदाज रखें। किसी दूसरे टिकटॉकर्स की नकल करने के बजाय ऐसी वीडियोस बनाएं जिसमें का काम दीगर लोगों में अलग नजर आए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी की एक और वीडियो शेयर की है जिसमें मुफ्ती कवी किसी खातून के साथ रक्स करते नजर आ रहे हैं। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मोहम्मद हफीज, इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक और वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज के लिए कौमी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि T20 सीरीज को वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है। तमाम लड़कों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उम्मीद है यही तसलसल बरकरार रहेगा। खिलाड़ियों की टीम में किरदार को देखते हुए सिलेक्शन की गई है। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि कुछ अहम चीजें नोट की हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले लड़के चाहें, मिडिल ऑर्डर में मैच को खत्म करने वाले बल्लेबाजों की जरूरत है। ऑलराउंडर्स को भी तवज्जो दी जाएगी। चीफ सिलेक्टर का कहना था कि उस्मान कादिर और जाहिद महमूद 20 रुकनी टीम में शामिल हैं। मोहम्मद हफीज T10 लीग और इमाद वसीम फैमिली वजूहात के बाइस टीम को दस्तयाब नहीं। शादाब खान इंजरी के बाइस मुंतखब ना हो सके, जबकि फखरुज्जमान, अब्दुल्ला शफीक, वहाब रियाज और मोहम्मद मूसा को ड्रॉप किया गया है। बाबर आजम कप्तान, हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, दानिश अजीज, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, जफर गौहर, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, आमिर यामीन, इमाद बट, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हुसैन, जाहिद महमूद, उस्मान कादिर T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। आज कराची की फजा मुज़र सेहत करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज कराची आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 11वें नंबर पर रहा।
एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फ़ज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 168 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 271 पार्टिकुलेट मीटर्स है। फ़ज़ाई आलूदगी के साथ कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से शदीद धुंध ने भी डेरे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से शहर में हद निगाह कम हो गई। आलूदा फ़ज़ा से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से माहिरीन सेहत ने एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि कराची के शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। बलूचिस्तान के शहर कोयटा में सर्दी की शिद्दत में कमी आने से मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। सर्दी कम होते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी कम कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर कोयटा में सर्दी की शिद्दत में कमी आने से पारा -10 से कम होकर -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद कमी मुतवक्को है। शहरियों का कहना है कि मौसम की तब्दीली के साथ ही मामूलात जिंदगी भी बहाल हो गए और कारोबार भी चल पड़ा है। सर्दी कम होते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी कम कर दिया है। शहरियों का कहना है कि अब वो मौसम नहीं है, इसलिए हेलमेट और दस्ताने पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही। वाज़ेह है कि एक हफ्ते कबल तक कोयटा में सर्दी की शिद्दत बरकरार थी, ताहम अब शिद्दत में कमी आ गई है। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में कमी से कराची में भी मौसम बेहतर हो गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।